In this video, we are going to discuss about the other mode of energy transfer, which is heat. So, heat, it is denoted by symbol Q, बड़ा वाला Q or small q. So, this is the symbol. Now, it flows between system and surrounding by virtue of temperature difference. As I already told you, when temperature is different between two bodies and we are going to make it touch with each other, and what will happen, a amount of energy will transfer from that body which is at higher temperature to that body which is at lower temperature, and this flow of energy is known as heat. So next thing is, heat given to system is equals to plus q, यानी system ने heat ली. If heat taken from the system means minus q, means system released some amount of heat. So this is the IUPAC sign convention. Plus means system attained or gained, and minus means system lost. Now next thing is molar heat capacity C. So what is this? It is the heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree. मतलब कोई substance है, आप उसको heat दोगे and if its temperature raised by 1 degree, then this amount of heat है ना, this amount of heat is known as molar heat capacity. Now formula is C. It is noted by symbol C is equals to Q upon T. Now Q equals to heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by dt value. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए. अब Q को मैं Ct लिख सकता हूँ, C dt for 1 mole. If we are talking about n number of moles, then multiply it by n. So heat Q equals to n C dt for n moles. Now it is, if it is certain that if it is not certain that heat capacity is changing, मतलब अगर किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है पर डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इफ C इज चेंजिंग, देन Q इक्वल्स टू n कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1 से 2 स्टेट पर, और C यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इनटू dt. तो आप ये यूज करेंगे. बट इफ दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो C भी बाहर आ जाएगा, nc, तो nc और T2 माइनस T1 मींस डेल्टा T. सो इफ मोलर हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट, देन Q इक्वल्स टू nc डेल्टा T. So this is heat capacity. I think you know its dimension है ना, जूल पर, यह आ जाएगा जूल पर केल्विन, ये T नीचे आ गया ना, तो जूल है पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. So that is all. Next is process dependent molar heat capacity. So molar heat capacity depending on process has been categorized into two categories. We can measure it at constant volume, or we can measure it at constant pressure. So if we are going to talk about at constant volume, means the wall should be rigid, means wall is not changing. So here the C term is further categorized into CV. V means at constant volume. इसको कुछ बुक्स CV ब्रैकेट में M भी लिख देता है, because the book want to know us that this is for 1 mole, है ना, molar volume, molar heat capacity at constant volume. So at constant pressure this term is CP और CPM, है ना, बुक्स के हिसाब से. यहाँ पे जो प्रेशर है एक्सटर्नल, वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जा रही है, दैट हीट इज नोन एज heat capacity at constant pressure. So the process is quite simple. QV equals to n integral CV dt if CV changes with respect to change in temperature. अगर CV टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेकिन इफ CV इज कांस्टेंट, है ना,
तो ये क्या बन जाएगा, केवल dt बचेगा और 2 - 1 यानी T2 - T1, तो क्या बन जाएगा डेल्टा T इफ C रिमेन्स कांस्टेंट। तो QB इक्वल्स टू NCB डेल्टा T। इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगेन सेम थिंग, n इंटीग्रल 1 से 2 CP dt है ना। CP अगर कांस्टेंट है तो D2 - T1 हो जाएगा, देन इट विल बी डेल्टा T इफ C does not changes. Now note, this is very important. For a gas, Cp is always greater than Cp, either it is ideal or real gas. Now for an ideal gas, Cp minus Cv equals to R. ये एक फॉर्मूला है, मेयर्स फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन NCERT में भी है और लेटर ऑन जब मैं एंथैल्पी वगैरह पढ़ा दूंगा तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई हाउ दिस equation came out. Now for the time being you just have to remember this equation, Cp minus Cv equals to R, by the name of Mayer's formula. Now another important thing which you have to note down is, except for monoatomic gas like helium, neon, argon etc., these are monoatomic gases, and Cp, Cv और C for every including ideal gas depends upon temperature. यानी कि Cp, Cv और C जो है मोनोएटॉमिक गैसेस का किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इनफैक्ट डायटॉमिक का और ट्राइएटॉमिक का भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 तरह की गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल है और आप इसको हीट कर रहे हो, तो इसमें 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो फॉरवर्ड या ऐसे अपवर्ड या इधर कहीं मूव कर रहा है, पहली। दूसरी, इसी गैस मॉलिक्यूल में एक और एनर्जी होती है, इसे बोलते हैं रोटेशनल। ये रोटेट भी कर सकता है अपने एक्सिस पे, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल, इसे बोलते हैं रोटेशनल। और एक लास्ट जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, जो कि आपके कोर्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल। ऐसे ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये अगर वाइब्रेट कर रहा है तो इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, these all 3 energies are included. So अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस में केवल और केवल क्या होती है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। और डायएटॉमिक गैस में जो नॉन लीनियर हैं उनमें क्या रहती है, ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल होती है नॉन लीनियर में। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रोटेशनल होती है, और वाइब्रेशनल तक तो आपके पास बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फाउंड इन मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ये मोनोएटॉमिक गैस में नहीं मिलती, मोनोएटॉमिक गैस में केवल और केवल ये मिलता है, और डायएटॉमिक में ये दोनों मिलता है। दैट्स ऑल। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है, A + BT + CT² + DT³ एंड so now you have to remember this chart. This is very 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 important because in all the numericals of thermodynamics we are going to use this chart. This is the Cp, Cv and gamma. Gamma stands for Cp upon Cv. So for an ideal gas, Cv for monoatomic gas like helium, neon, argon is 3/2R. Cp is 5/2R. I already told you that Cp is greater than Cv for any gas, and gamma is 5/3, which is approximately 1.66. For diatomic, linear means in the same plane, है ना, सेम प्लेन वाली मॉलिक्यूल्स के केस में डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। तो जनरली डायटोमिक O2, S2, N2, और जैसे ये CO2 और NO2 हैं, ये सब लीनियर गैसेस हैं। तो इनके केस में
stands for 5/2r and Cp 7/2r and gamma is 7/5. नेक्स्ट फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, मतलब पॉलीएटॉमिक हो और नॉन लीनियर मतलब सेम प्लेन में ना हो, तो एग्जांपल है O3, H2O, SO2, CH4, इनका स्ट्रक्चर बनाओगे आपको पूरी समझ में आ जाएगा। दीज आर नॉन लीनियर गैसेस, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है। Cv इज फॉर 3r, Cp इज 4r एंड गामा इज 4/3। 4r/3r क्या होगा, r से r जाएगा, 4/3r। सो दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ this chart is based on considering few things, which are all three Cp Cv value are taken considering only translational and rotational degree of freedom। मतलब ये जो चार्ट बना है इसमें केवल दो तरह की काइनेटिक एनर्जी मानी गई है, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसिडर नहीं करी गई है। अगर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करेंगे तो ये चार्ट बदल जाएगा, बट वो हमारा टारगेट अभी नहीं है क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली एक्टिवेट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ही वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्टिव होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट Cp एंड Cv। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी another mode of energy transfer, which is internal energy। Now the other state function, which is internal energy, symbol denoted by U और E, है ना। U अभी नया सिंबल है, E पुराना सिंबल है। अगर पुरानी बुक पढ़ोगे तो उसमें E दिखेगा आपको। So first of all you should know it is a state function। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी बहुत ही अजीब चीज है। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं 3 लोग हैं, मान लो एक पार्थिव है और एक जोनक है और एक शोभित है। पार्थिव, जोनक एंड शोभित आर 3 पर्सन। तो पार्थिव 3 रोटी खाता है, जोनक भी 3 रोटी खाता है एंड शोभित ऑल्सो ईट्स 3 चपातीज एट अ सेम टाइम। बट the point is Parthiv can carry 5 books at a time, but Jonak can carry 6 books at a time from home to school, and at the same time Sovik can carry around 10 books at the same time। मतलब एक 6 बुक, एक 5 बुक, एक 6 बुक और एक 10 बुक। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक के पास मतलब तीनों ने सेम रोटी खाई, 3 रोटी ही खाई, है ना। ऑल 3 ate 3 चपाती एट अ टाइम, बट एनर्जी इज डिफरेंट इन केस ऑफ Sovik। Sovik कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। सो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मेक मीन्स इज दैट कि इंटरनल एनर्जी वी डोंट नो हाउ मच एनर्जी डू Sovik possess, but for sure as he can deliver more work in comparison to Jonak and Parthiv, he is quite he must have high internal energy, that energy is only getting converted into useful work। so that is what internal energy, मतलब आपकी बॉडी में जो जो एनर्जी है, कई तरह की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि वो बुक भी उठा सकता है, बोरी भी उठा सकता है और शक्तिमान की मतलब सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है। तो ये सारी क्या है, ये इंटरनल एनर्जी। अब हम नहीं डिफाइन कर सकते इंटरनल एनर्जी क्या है, बस लेमन की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल सेट ऑफ एनर्जी है, जो उसके अंदर हर तरह से पॉसिबल है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट रेस्ट, बशर्ते वो रेस्ट पे होना चाहिए, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लाइक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऊपर से अप्लाई नहीं हो रहा है। Hence it possess a certain amount of energy associated with its molecule called internal energy, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब सिंपल सी बात है कि मैंने एक इसको मैं कैसे समझाऊं, वही वाली बात है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अब सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। बस इतना याद रखो कि अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऐसा नहीं है कि सिस्टम रेस्ट पे है बट वो किसी मूविंग ट्रेन में है
है ना। किसी मूविंग ट्रेन में या मूविंग मान लो एक ट्रक पे एक बीकर में वाटर जा रहा है ना, और वही बीकर अगर जमीन पे रखा है तो ऑब्वियसली जब वो जमीन पे रखा होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब वो मूव कर रहा है विद द ट्रक तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी ड्यू टू मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो अगर आप फ्रेम ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना फिजिक्स में जाके जुड़ जाता है। फिजिक्स में जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, कि मान लो मैं अभी स्टेबल हूँ, मैं खड़ा हूँ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में खड़ा हूँ, अपने मोबाइल के रिस्पेक्ट में, बट मैं मूव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स मैं मूव कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी मैं हूँ और यहाँ पे मेरा एक क्लोन खड़ा है, तो हो सकता है कि मेरे और उसमें इंटरनल एनर्जी सेम हो, और ये भी हो सकता है कि वो मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो दूसरा जो मेरा क्लोन है वो मूव कर रहा है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो। सो दिस इज हाउ इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स, अब क्योंकि हम बता तो सकते नहीं है कि सिस्टम में कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है, फिर भी हमने थोड़ा सा गैस किया है। गैस क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे जैसे ट्रांसलेशनल। रोटेशनल हो सकता है मैं रोटेट कर रहा हूँ या मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा हूँ। और वाइब्रेशनल, ये तो आपको मालूम है वेरी हाई टेम्परेचर पर होता है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है ना, और वो भी मोनोएटॉमिक नहीं, डायटॉमिक, है ना, मिनिमम डायटॉमिक होना चाहिए। तो इतनी टाइप की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या हो सकता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मान लो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की फोर्स है। लेकिन आपको मालूम होगा आइडियल गैस में कोई फोर्स था ही नहीं, तो इसलिए फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी टर्म शुड बी जीरो। मैंने लिख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच रिमेन्स जीरो फॉर आइडियल गैस। और थर्ड इज बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड के बीच में भी एनर्जी होगी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, अब दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कुछ एनर्जी होगी। और इनफैक्ट न्यूक्लियस अगर आप बोलो कि ये सारी आपने ऐड कर ली और कोई बच रही है, तो हाँ मैं और भी बता